Okay, student, next we are starting here. Uh, the next topic, that conventional breeding is often concentrated by ability of the limited number of diseases resistant genes that are present and identified in the various crop varieties or wild relatives, inducing mutations in plants through diverse means and then screening the plant materials for resistance sometimes leads to desirable genes being identified. Plants having these desirable characters can then be either multiplied directly or can be used in breeding. Other breeding methods that are used are selection amongst somoclonal variants and genetic engineering. Okay, next, mutation is the process by which genetic variations are created through changes in the base sequences within genes, resulting in creation of new characters or trait not found in the parental type. It is possible to induce mutations artificial through use of chemicals or radiations like gamma radiations and selecting and using the plants that have the desirable characters as a source in breeding. This process is called mutation breeding. Okay, in mung beans, resistance to yellow mosaic virus and powdery mildew were induced by mutation. Okay, several wide relatives of different cultivator species of plants have been shown to have certain resistant characters but have very low yield. Hence, there is a need to introduce the resistant gene into the high yielding cultivator variety. Resistant to yellow mosaic virus in bhindi, Abelincomox esculentus, was transferred from a wild species and resulted into new varieties of Ablomoncus esculentus called परभीनी क्रांति. ठीक है, ये जो टर्म्स हैं सारी सारी यू हैव टू लर्न करना है विद देयर साइंटिफिक नेम. ओके, जितने भी एग्जांपल हमने ऊपर डिस्कस किए जिसमें रेजिस्टेंट जीन्स इन्वॉल्व हैं which has to be bred for disease resistant, okay, related to wild species. Transfer of resistance gene is achieved by sexual hybridization between the target and source plant followed by selection. Plant breeding for developing resistance to insect pests. Another major cause for large-scale destructions of crop plants and crop produce is insect and pest infestation. Insect resistance in host crop plants may be due to morphological, biochemical, or physiological characteristics. Hairy leaves in several plants are associated with resistance to insect pests. Example, resistant to jessit in cotton and cereal leaf beetle in wheat. In wheat, solid stem leaf lead to non-preference by stems softly and smoothly leaved and nectarless. Cotton varieties do not attract the bollworm. High aspartic acid, low nitrogen and sugar content in maize lead to resistance to maize stem borers. स्टेम बॉर्डर्स का मतलब होता है जो स्टेम पार्ट रहता है मेज का, वो जो इंसेक्ट फॉर्म्स होते हैं उसको क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय कर देगा. ठीक है, इस तरह से ब्रीडिंग मेथड फॉर इंसेक्ट पेस्ट रेजिस्टेंट इन्वॉल्व द same step as those for any other economic traits such as yield or quantity, and are as discussed above. Sources of resistant gene may be cultivated varieties, germplasm collections of crop or wild relatives. You have seen these are the इंसेक्ट पेस्ट वाली जो वैरायटी जो इम्प्रूव करी गई हैं. ब्रासिका की है सबसे पहले. ब्रासिका सरसों वाला प्लांट है, ठीक है. ये सब पूसा गौरव एंड एफिड से ये प्रोटेक्ट है. फ्लैट बीन्स जो है पूसा सेम 2, पूसा सेम 3, जैसिड, एफिड्स एंड फ्रूट बॉरर्स. एंड ओकरा, ओकरा भिंडी को बोलते हैं, सभी भिंडी खाते हैं, सभी को बहुत पसंद है. पूसा
सावनी इज अ पूसा A4 इज अ शूट एंड फ्रूट बोरर, जो स्टेम पार्ट और फ्रूट को क्या करते हैं, हार्म करते हैं। ठीक है। प्लांट ब्रीडिंग फॉर इम्प्रूव्ड फूड क्वालिटी, जो हमारे 840 मिलियंस पीपल हैं पूरे वर्ल्ड में, मोर देन, इससे ज़्यादा लोग जो हैं उनको प्रॉपर खाना नहीं मिल पाता है। ठीक है। जो उनकी डेली फूड एंड न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी उनकी फुलफिल नहीं हो पाती हैं। तो फार ग्रेटर नंबर 3 बिलियंस पीपल जो हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट से क्या रहते हैं, सफ़र करते हैं। उनमें प्रोटीन की कमी पाई जाती है, विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है। हिडन हंगर मतलब आपको लग रहा है उसका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो आपको दिख नहीं रहा है कि वो भूखा है। बिकॉज देयर कैन नॉट अफोर्ड टू बाय एनफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, फिश एंड मीट। उनके पास एनफ पैसा नहीं है कि वो इन सब चीज़ों को खरीद पाएँ। डाइट्स लैकिंग एसेंशियल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स पार्टिकुलरली आयरन, विटामिन A, आयोडीन एंड जिंक। Increase the risk for disease, reduce lifespan and reduce mental ability। ठीक है। तो इससे यही रीज़न रहता है कि हमें प्रॉपर अपना डाइट शेड्यूल रखना चाहिए। हमें अपनी डाइट में जो है वो फ्रूट्स को रखना चाहिए। ओके। और तीसरा जो है आपके पास, जो भी आपके पास वेजिटेबल्स फॉर्म्स हैं वो भी इंक्लूड होना चाहिए। आपके पास सीरियल्स हैं, चाहे वो आपके पास पल्सेस हैं। पल्सेस आपको पता है रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन है। तो हमें अपने डाइट शेड्यूल में डेली जो है वो दाल लेनी ही चाहिए, क्योंकि ग्रोइंग स्टेज पे बच्चों के लिए प्रोटीन का बहुत ही ज़्यादा रोल है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो है बायोफोर्टिफिकेशन, इट्स अ ब्रीडिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ, ओके। इमेस्कुलेशन वगैरह जो हमने पढ़ रखे पीछे वो बहुत सारी इंपॉर्टेंट है, अभी लेटर डिस्कस करूँगी। लेकिन बायोफोर्टिफिकेशन जो है वो हमेशा ही इस बार भी आया था। ठीक है। बायोफोर्टिफिकेशन है क्या? बायोफोर्टिफिकेशन का मतलब है कि हमने जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनमें न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी को एनहांस करना है। इंक्रीज लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट क्वालिटी, न्यूट्रिएंट हो सकता है क्या, कौन कौन से जो प्रोटीन, जो आपके लिपिड्स होते हैं, फैट्स होते हैं, विटामिन होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मिनरल कंटेंट, इनकी जो है वो एनहांसमेंट करनी है। ठीक है। तो ये आपका बायोफोर्टिफिकेशन है। मेज हाइब्रिड्स होते हैं दैट हैव ट्वाइस द अमाउंट ऑफ अमीनो एसिड्स, लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन कंपेयर टू एग्जिस्टिंग मेज हाइब्रिड वर डेवलप beet varieties. Atlas 66 is having a high protein content है, used for donor for improving cultivator beets, और it is possible to develop an iron fortified rice varieties containing over 5 times as much iron as a commonly consumed variety. The Indian Agricultural Research Institute is IARI न्यू दिल्ली, कहाँ पे लोकेटेड है ये? न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। सेवरल वेजिटेबल क्रॉप्स है रिच इन विटामिन एंड मिनरल्स। एग्जांपल विटामिन A रिच्ड कैरेट, spinach, pumpkin, vitamin C enriched bitter gourd, bathua, mustard, tomato, iron and calcium enriched spinach and bathua, and protein enriched beans, broad lab and French and garden peas. Okay, clear? Okay. Next up, guys, and the last topic of this chapter is the single cell protein. Okay, single cell protein is what? सिंगल सेल प्रोटीन का मतलब होता है आपके पास जो है, हमने क्या करना है एज ए फूड सोर्स जो है हम इसका यूज़ कर रहे हैं। अब एग्जाम्पलीफाई आपको किया गया है कि जैसे आपके पास क्या है कि अगर कोई 3 to 10 किलोग्राम कोई ग्रेन ले रहा है, वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है 1 किलोग्राम, मतलब काऊ को आपने दिया, मतलब कुछ भी एनिमल्स या जो भी है वो इतना क्यों खाता है, तो प्रोड्यूस 1 किलोग्राम मीट बाय एनिमल फार्मिंग। अभी यहाँ से ये चीज़ें हमें समझनी है कि तब भी जो ह्यूमन पॉपुलेशन है कहीं ना कहीं वो भूख से और जो है माल न्यूट्रिशन जिसको
न्यूट्रिशन की कमी है, उससे उसके मतलब वो सफ़र कर रहा है। तो एक अल्टरनेट सोर्स निकाला प्रोटीन का, एनिमल ह्यूमन न्यूट्रिशन इज सिंगल साइड प्रोटीन। माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, are being grown on industrial scale as a source of good protein. Microbes like spirulina can be grown easily on materials like wastewater from potatoes processing plant. Very important. Straw, molasses, animal manure, and to produce large quantity and can serve as food rich in protein, minerals, fats, carbohydrates, and vitamins. Incidentally, such utilizations also reduce environmental pollutions. क्या होता है कि जब हम इसकी प्रोडक्शन के लिए इन सब वेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्या हो रहा है, नीट एंड क्लीन हो रहा है। क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दे रखा है, दैट इज़ जैसे 250 किलोग्राम काऊ है, वो क्या प्रोड्यूस करती है, 200 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर डे प्रोड्यूस कर रही है। सेम पीरियड में अगर हम 250 ग्राम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एग्जाम्पल दिया है आपके पास, इट्स अ मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस, तो इसका बिकॉज ऑफ हाई रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन एंड ग्रोथ कैन बी एक्सपेक्टेड टू प्रोड्यूस 25 टन ऑफ प्रोटीन। ओके, द फैक्ट दैट the mushrooms are eaten by many people and large scale mushroom culture as growing industry makes it believable that microbes too would become acceptable as a food product. अब यहाँ पे जो SCP प्रोडक्शन के लिए जो माइक्रोब्स यूज़ किए जाते हैं वो चीज़ हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। इट्स अ सियानोबैक्टीरिया, और SCP में हम यूज़ करते हैं इट्स अ स्पिरुलिना। ठीक है, क्या यूज़ करते हैं, स्पिरुलिना यूज़ करते हैं। दूसरे बैक्टीरिया जो हमने अभी डिस्कस कर लिया, इट्स मिथाइलोफिलस मिथाइलोट्रोपस। ईस्ट में या आप अपने एडिशनल नॉलेज के लिए आप अपने बुक्स में लिख सकते हैं, इट्स अ कैंडिडा यूटिलिस। ठीक है, और फिलामेंटस फंगस में इज फुसेरियम, फ्यूजेरियम, ये फंगस है, फ्यूजेरियम। फ्यूजेरियम ग्रैमीरम। ठीक है, तो इस तरह से आपको लिटली याद रखना है। और एडवांटेजेस, वेरी इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस क्या रहती हैं, इट इज़ रिच इन हाई क्वालिटी प्रोटीन एंड पुअर इन फैट कंटेंट। दूसरा, इट रिड्यूसेस द प्रेशर ऑन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन सिस्टम फॉर सप्लाई ऑफ रिक्वायर्ड प्रोटीन। वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड पॉइंट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस, सो इट हेल्प्स टू minimize the environmental pollution. SCP can be produced in laboratories throughout the year. Okay. Next topic is tissue culture. Okay. Tissue culture is what? टिश्यू कल्चर का मतलब क्या होता है? टिश्यू कल्चर का मतलब है आपके पास एक तरह की टेक्निक होती है ऑफ मेंटेनिंग एंड ग्रोइंग प्लांट सेल्स, टिश्यू और organ, especially on artificial medium in suitable conditions or containers under controlled environmental conditions. मतलब टिश्यू कल्चरिंग तो करवाएंगे लेकिन वो क्या होगा, कंट्रोल्ड लेबोरेटरी में हम ये चीज़ें करेंगे। ऐसा नहीं है जो नेचुरल एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ ग्रो कर रही है वैसा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, उसको लैब कंडीशंस में किसी भी प्लांट के पार्ट से हमने कल्चरिंग करना है और उससे जो है होल प्लांट बॉडी की डेवलपमेंट कर देनी है। अभी बोल रहा है कि द पार्ट विच इज़ कल्चर्ड, इसको क्या बोलते हैं, प्लांट का वो पार्ट जिसको हम कल्चरिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं उसको क्या बोलना है, एक्सप्लांट बोलना है। क्या बोलना है, एक्सप्लांट। कोई भी पार्ट, प्लांट का कोई भी पार्ट जो है जब हम यूज़ करते हैं और उसको ग्रो करवाते हैं टेस्ट ट्यूब में अंडर स्ट्राइल कंडीशन, स्ट्राइल का मतलब है फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया इन स्पेशल न्यूट्रिएंट मीडियम। ठीक है, उसको क्या बोल दिया आपने, एक्सप्लांट बोल दिया। नेक्स्ट टर्म जो है दैट इज टोटियोपोटेंसी।
टोटिपोटेंसी इज व्हाट? टोटिपोटेंसी जो है एक तरह का क्या है, प्रोसेस है, कैपेसिटी टू जनरेट अ होल प्लांट बॉडी फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ प्लांट। मतलब एक्स प्लांट है, वो आपका कोई भी प्लांट और पार्ट है जहाँ से हम क्या करते हैं, नया प्लांट बॉडी डेवलप करवाएंगे, उसको क्या बोलेंगे, टोटियोपोटेंसी बोलेंगे। होल प्लांट बॉडी की जहाँ पे क्या हो जाती है, डेवलपमेंट हो जाती है। अब यहाँ पे जो होल प्लांट जो रीजनरेट होता है प्लांट किसी पार्ट से, ठीक है, तो जिसने टिश्यू कल्चर टेक्निक फर्स्ट इनिशिएट किया था वो थे आपके पास हैवरलैंड। नाम क्या है उनका, गॉटिलिव हैवरलैंड। कब किया था, 1902। ओके। अब हार्मोन जो प्लांट टिश्यू कल्चरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, ऑक्सिन आपको पता है ग्रोथ हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीजन के लिए यूज़फुल होता है, जिबलिन स्टेम की ग्रोथ के लिए यूज़ किया जाता है, एब्साइसिक एसिड आपको पता है स्टॉप हार्मोन है, मतलब पर्टिकुलर एक ग्रोथ तक ही क्या करेगा, कोई भी चीज़ जो ग्रो करेगी। पॉलीएमीन्स जो है कुछ हद तक जो है हम इन हार्मोन्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, नेक्स्ट आपके पास आती है कुछ यहाँ पे हम लेंगे कि एनवायरमेंटल कंडीशन जो हम आर्टिफिशियल तरीके से जो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। फर्स्टली न्यूट्रिएंट मीडियम है जो अभी लिटरली हम डिस्कस कर रहे थे, न्यूट्रिएंट मीडियम जिसमें हम उसको ग्रो करवाएंगे कौन सा है, एसेप्टिक। एसेप्टिक का मतलब फ्री फ्रॉम एनी बैक्टीरिया। इरेशन, इरेशन का मतलब कि प्रॉपर एयर जो है, मतलब प्रॉपर एयर जो है मूव कर रही है उसमें प्लांट की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट के किसी पार्ट को ग्रो करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशंस में जब भी हम किसी चीज़ को ग्रो करवाते हैं उसमें अगार मीडियम जो है सबसे ज़्यादा एक एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट जो है यूज़ किया जाता है, उसमें जितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसकी एडिशन की जाती है, ऑप्टिमम पीएच सब कुछ सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो एसेप्टिक कंडीशन स्टेरिलाइजेशन करवाना है, हमने कोई भी मटेरियल वहाँ पे यूज़ करना है, चाहे वो टेस्ट ट्यूब हैं, चाहे वो आपके कुछ भी जो भी हम कुछ मतलब जहाँ पे भी हम कल्चरिंग करवा रहे हैं वो फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म होना चाहिए, एसेप्टिक। तो सबसे अच्छा जो रहता है वहाँ पे बिल्कुल 99% एब्सोल्यूट अल्कोहल जो है उससे हम पूरे सरफेसेस को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे लैमिनार एयर फ्लो हो गया, चाहे माइक्रो लैब जो पूरी स्टराइज ही होती है जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, फिर भी कहीं ना कहीं मैकेनिज्म ग्रो कर ही जाते हैं। टेस्ट ट्यूब भी पूरी तरह से क्या होते हैं, स्टराइज आपके पास ऑटोक्लेव होता है, ठीक है, जिससे हम क्या स्टीम्ड आउट जो है करते हैं हर एक जो भी आपके पास जो भी आपने यूटेंसिल वहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है। इरेशन ऑफ टिश्यू पर्टिकुलरली होता है जो अभी हम डिस्कस कर ही चुके हैं। कैसे हम करते हैं, सबसे पहले जो है आपके पास फर्स्ट कंसेप्ट आता है दैट इज़ कैलस। कैलस क्या है, हम यहाँ पे जो कैलस कंसेप्ट आपको लेके चलना है, कैलस कल्चर में क्या करना है कि सेल डिवीजन इन एक्सप्लांट फॉर्म ऑफ कैलस। कैलस इज इरेगुलर अनऑर्गेनाइज्ड एंड अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स, ठीक है। मेन चीज़ तो यही है, जो भी हार्मोन कुछ भी हमने इंट्रोड्यूस कर देना है, एक्सप्लांट जो भी सेल डिवाइड करना शुरू कर देगा, तो कैलस जो है हमें 2-3 हफ्तों में मिल ही जाता है। नेक्स्ट आपके पास आता है सस्पेंशन कल्चर। सस्पेंशन कल्चर क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल सेल एंड स्मॉल ग्रुप ऑफ सेल सस्पेंडेड इन लिक्विड मीडियम, ये लिक्विड मीडियम में, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपके पास मेन जो यहाँ पे एप्लीकेशन मेथड चलेगा इसका, आपका आ जाएगा माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन इज व्हाट, ठीक है। जब भी हम क्रोमोसोम नंबर को एनहांस करते हैं इसमें, तो कॉल्चिसिन ड्रग होगी, ठीक है, उसकी इंट्रोडक्शन करते हैं तो उससे पॉलीप्लाइडी अक्कर करती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम में वो इंक्रीज कर जाते हैं, ठीक है। और माइक्रो प्रोपेगेशन इस तरह का टिश्यू कल्चर टेक्निक होता है यूज्ड फॉर रैपिड वेजिटेटिव मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड फूड ट्रीज बाय यूजिंग स्मॉल साइज्ड एक्सप्लांट। Because of minute size of propagules in culture, the propagation technique is called
माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, ये जो टिश्यू कल्चर का मेथड है, प्रोड्यूस सेवरल प्लांट्स, और हर एक जो प्लांट है जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल प्लांट होता है। अब जेनेटिकली आइडेंटिकल प्लांट्स जो हैं डेवलप फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट बाय टिश्यू कल्चरिंग और माइक्रो प्रोपेगेशन इज कॉल्ड सोमोक्लोन्स। क्या बोलते हैं उनको हम? सोमोक्लोन्स। these two terms, very important term these are. The members of single somoclones have to the same genotype. Micropropagation is also called somoclonal propagation. Okay. फर्स्टली हम क्या करेंगे? इनिशिएशन करेंगे कल्चर की, शूट फॉर्मेशन, रूटिंग ऑफ शूट है, ट्रांसप्लांटेशन है। एडवांटेजेस क्या रहती हैं माइक्रो प्रोपेगेशन की? बहुत सारी हैं। रैपिड मल्टीप्लिकेशन हो जाती है प्लांट्स की, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स जो है हमें ऑब्टेन हो जाते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में। प्लांट्स जो हैं वो हमें पूरा साल मिलते रहते हैं कंट्रोल कंडीशन में। स्ट्राइल प्लांट्स भी which cannot maintain their characters by sexual reproduction are also multiplied by this method. It is easy, सेफ एंड इकोनॉमिकल मेथड फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। ठीक है। और ऑर्नामेंटल में टिश्यू कल्चर प्लांट्स जो हैं गिव बेटर ग्रोथ, मोर फ्लावर्स एंड लेस फॉल आउट। ओके, जेनेटिकली सिमिलर प्लांट्स जो हैं आर formed by this method. Okay, the rare plants and endangered species are multiplied by this method. Okay, so this is all about this chapter. You have to make the notes of this chapter. Okay, and learn and understand all the terms very clearly. Thank you.